So good afternoon class 11th. Let's continue our study on permutation and combinations, and I have given you miscellaneous exercise to try. So let's solve all the questions on miscellaneous. Question number 1. How many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants, can be formed from the letters of the word daughter? Now the word is daughter. Okay. So how many vowels are there? U, E. Right? There are only U and E. And consonants are D, G, H, T, R. So two vowels. So two vowels selected from two vowels, right? Is there any other vowel? No, right? We got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letters, 2 vowels and 3 consonants. We have to select 2 vowels out of 2 vowels. That is, we have to select 2C2. And from 4 consonants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Right? 1, 2, 3. So from 5 consonants, we have to select 3 consonants. That is 5C3. तो पहले क्या करेंगे? Selection कर लेते हैं. This is selection. And now since you have selected how many? 5. You will arrange them in how many ways? 5 factorial manner. So this is 1 and this is 5 factorial upon 3 factorial. Solve करके देख लेना. 4 into 5, 4 into 5 divided by 1 into 2 आ जाएगा. ठीक है ना? 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है into 5. तो ये जो भी आंसर आता है मेरे ख्याल से 10 into 120, 1200 आना चाहिए. So you just write the answers and I'm sure you will be able to solve these kind of questions. Very easy ones. आपको क्या करना है? पहले selection and then permutations. Okay? तो मतलब पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से और उसके बाद उसको परम्यूट कर देना है. परम्यूट मतलब रोटेशन. So we got 3600. This is the answer number 1 is 3600. So we just check it again. यहाँ पर आपने क्या बताया? 2C2 किया 1 होता है. 5C3 किया. 5C3 को अपन ने क्या लिखा? 4 into 5 और 3 फैक्टोरियल से काट दिया और 1 into 2. 5 to the 10 and 5 factorial because 2 can be arranged in 5 factorial 1200. So I just but the answer is 3600. We'll just write all the answers. इसका करेक्शन कर देते हैं बेटा. 1440, third 504, 588, 1632 and fourth 907200. So let's check the first question one more time. Question is how many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants? So 2 vowels, how many vowels are there? D-A-O, D-A-U, right? A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8. D-A-U-T-H. Yes. There are 8. So 1 A is also there. Somebody must be saying. Very good. So 3C2. This is 3C2. और 3C2 जो होते हैं ना बेटा वो 3 होता है. तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना रहेगा? 3600. ठीक है? That is the answer of the first question. Right? Next question. We have just gone for the second one now. Second question is how many words with or without meaning can be formed from all the letters of the word equation at signs so that vowels and consonants occur together? E, Q, U, A, T, I, O, N. How many vowels are there? E, U, A, I, O. All vowels are there. Consonants Q, T, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? So they should occur together. So let them be X. They should occur together. Let them be Y. So X and Y. There are 2 letters. They can be arranged in how many ways? 2 factorial manner. And these vowels are all separate. Can be arranged in 5 factorial manner. And these consonants are separate. Can be arranged in 3 factorial manner. तो X और Y आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो रहे हैं. ये पांचों आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो रहे हैं. तो ये एक ही लेटर X लेकिन आपस में अरेंज हो सकते हैं. Y भी आपस में अरेंज हो सकता है 3 फैक्टोरियल तरीके से. तो आंसर आ जाएगा 2 into 120 into 6. ठीक है? तो ये हो जाएगा 6 to the 12, 12 into 12, 1440. ठीक है? That is the correct answer. Now अब यहाँ पर है a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly
3 गर्ल्स, तो कितने बनाने हैं? 7 लोगों की कमेटी बनानी है और 9 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, 9 boys and 4 girls. So we have got committee. 9 boys are there, 4 girls are there, right? 4 girls, 7 member committee, 7 member and exactly 3 girls. तो यहाँ से 4C3 3 girls यानी कि आप 3 girls आ गई एग्जैक्टली, तो बचे 4 boys, 4 boys यहाँ से आएंगे तो 9C4, ठीक है। कमेटी बनानी है, उसको अरेंज नहीं करना, तो बस ये यहाँ से रह जाएगा 4C3 into 9C4, ठीक है। वो आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके whether we are getting the answer or not. Then at least 3 girls, at least का मतलब होता है कम से कम 3, तो 3 आ जाए, 3 गर्ल्स आ जाए पहला केस, 4 गर्ल्स आ जाए दूसरा केस, और 5 गर्ल्स हो नहीं सकती क्योंकि 4 ही गर्ल्स हैं, तो यू विल ऐड दीज 2। तो पहला केस में तो आ जाएगा 4C3 into 9C4, और एटलीस्ट में ऐसे 2 केसेस बनाने हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, ठीक है, एडिशन, क्योंकि अलग अलग केसेस हैं। तो दूसरा वाला हो जाएगा 4C4 और 3 गर्ल्स यहाँ से रहेंगी 9C3, तो आपको 4C3 into 9C4 प्लस 4C4 into 9C3 करना है, ठीक है। एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स में क्या करना है? एटमोस्ट में हमेशा 0 से स्टार्ट करो, 0 गर्ल्स, नो गर्ल्स, 1 2 3 गर्ल्स, ओके, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। 0 गर्ल्स मतलब ऑल बॉयज, तो 9C7 प्लस बीच में प्लस आएगा 1 गर्ल फ्रॉम हियर 4C1 एंड 6 बॉयज 9C6 प्लस 2 गर्ल्स, तो 4C2 into 9C5 प्लस 3 गर्ल्स 4C3 into 9C4। इस तरह से आप इन सबको ऐड कर लेना, 9C7 प्लस 4C1 into 9C6 प्लस 4C2 into 9C5 प्लस 4C3 into 9C4, ठीक है। If all the different permutations letter about examination are listed in dictionary, in how many words are there in the list before the first word starting with E? लेटर है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के पहले, ठीक है, सारे वर्ड्स अरेंज करने हैं अपने को, पहले एग्जामिनेशन लिख लेना, एग्जाम, एग्जामिनेशन, ओके, ये वर्ड आ रहा है एग्जामिनेशन। Different permutation of the letters of the word examination are listed in the list. How many words are there in the list before the first word starting with E? E से पहला वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले कितने वर्ड आएंगे? तो आपको पहले देखना है E के पहले कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। यहाँ पर A आ रहा है, A आ रहा है, ठीक है ना। फिर A के बाद क्या आता है? A, यहाँ पर देखो A के बाद नेक्स्ट क्या आता है? A, B है क्या नहीं है? C है क्या नहीं है? D नहीं है, E बस, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, तो उसके बाद सीधे A, E ही से स्टार्ट होगा। तो आप पहले A से स्टार्ट होने वाले लिस्ट कर लीजिए सारे वर्ड। तो पहले A है, ठीक है ना, एंड देयर आर 2 A's हियर। तो आपको क्या करना है, उन दोनों के परम्यूटेशन तो सेम ही रहेंगे। तो बेसिकली A के बाद देख लेते हैं कितने लेटर्स बचे हैं, 1 2, A और A हटा दो, दोनों A हटा दो, और इस A में स्टार्ट करते हैं पहले सिंगल A से, ठीक है। तो A को यहाँ रख दीजिए, और बाकी लेटर्स कितने बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यार एक A यहाँ रख रहे हैं हम, तो बाकी ऐसे भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल, 11 फैक्टोरियल। तो ये अरेंज हो सकते हैं सारे के सारे, राइट। इसमें से रिपीटेशन किस किस में आ रहा है, तो A 2 है, A 2 है, ठीक है, और X कितना है, 1 है, E कितना है, 1 है, I कितना है, I भी 2 है, I भी 2 है, और I 2 आ गया, A 2 आ गया, N 1, N 2 है, N भी 2 है, ठीक है, और O कितना है, O 1 है, P 1 है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके पास ये आ रहा है। तो जो वर्ड्स A से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें A यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया मैंने, ठीक है ना। अब आपके पास जो लेटर बचे वो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से एक A यहाँ पर आ गया, तो बचे आपके पास 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और उसमें से एक दूसरा भी काउंट करेंगे, वो रोटेट हो रहा है, दूसरा वाला A वो कहीं पे भी रोटेट हो सकता है।
10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल i के और 2 फैक्टोरियल n के, दैट शुड बी द आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना होता है ये। 10 फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए, 7 फैक्टोरियल याद कराया था मैंने, 5040 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 2। तो इसको काट देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 टू द 4 बचेगा, ठीक है ना। 2 से काटेंगे तो 4 और फिर बाद में 2 बचेगा, ओनली 2 इज लेफ्ट हियर। सो द आंसर इज 5040 इंटू 180। तो 504 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 18 4 दा 72, 18 5 दा 90, तो 907200। ऐसे कोई आंसर आएगा? बिल्कुल है, 907200। तो ये सारे वर्ड ए से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे डिक्शनरी में आप लिस्ट करोगे एंड यू कैन डू सम मोर एग्जांपल्स इन द एग्जांपल्स आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। तो 6 डिजिट नंबर्स हैं। 6 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली जिनमें 6 डिजिट्स हो, और हमारे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं? रिपीटेशन अलाउड है क्या? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड डिजिट्स आर 0 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 डिजिट्स आर देयर और 6 डिजिट नंबर बनाने। तो सबसे पहले देखो आपके पास और आपको क्या करना है, विच आर डिविजिबल बाय 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट डिजिट जो है ना वो तो 0 होना चाहिए। तो 0 तो अपने लास्ट डिजिट दे दिया। अब अपने पास कितने ब्लॉक बचे? इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक बच गए, ठीक है। और ये 5 डिजिट्स हैं, वो यहाँ पे अरेंज हो सकती हैं 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 2 1, यानी 5 फैक्टोरियल हो गया। तो सीधा ही 120, no digit is repeated. Let me just check the answer for this one, and then remaining question you have to try. So keep trying the exercise and try to complete it. We'll discuss the answers of the remaining questions in the next videos. So I'm sure you will try all the questions, and if you have any problem you can post your doubts here. 200 this is question number 5. So we are getting the answer as, where is that? 7, miscellaneous. 120 is the correct answer of the fifth question. So I am sure you will complete all the work and see you in the next class.